Hello friends, today I am going to start with 12 physics lecture number 6 rotational dynamics. So students, we have completed with circular motion and we have started with rotational motion in last lecture. So today in this lecture we are going to study about theorem on perpendicular axis, theorem on parallel axis and rolling motion. Moving on to the topic theorem on the perpendicular axis. So I am going to state first what is theorem on perpendicular axis. Theorem states, it states that moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in a plane of a laminar body. Again I am repeating, it states that moment of inertia of a plane lamina body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in a plane of a laminar body. मतलब एक एक्सिस जो होगा वो दूसरे एक्सिस से परपेंडिकुलर रहना चाहिए और जो तीन एक्सिस हम बनाने वाले हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो अपना जेड एक्सिस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा. तो हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं. लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी. It is a rigid body. So it is a center of this rigid body, center of mass. We'll draw some axis. Okay. Let us consider this as an x-axis. You have to consider because as per statement we will go, because it is a x-axis, we all know that, and we are taking here it as a x-axis. Why? Well understood. Listen properly. X-axis, y-axis and z-axis, all three axes are mutually perpendicular. It means you can take x, y and z anywhere. So x-axis, y-axis and z-axis I have taken here, and I will place some mass at this point. So from this point I will draw some lamina. This is my lamina. At point P I have placed the mass, that is dm, is a small amount of mass. Let us consider this center as a C, this point as a O, and let us consider this point as a P. Okay, so these are 90 degree perpendicular. Okay, now what this statement states? It states that moment of inertia of a plane lamina, this is my plane lamina, about an axis perpendicular to its plane, about an axis परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. देखो ये एक्सिस जो है ये प्लेन से परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, जो एक एक्सिस है वो किसके बराबर होना चाहिए, अपने दूसरे एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उसका समेशन होना चाहिए. इसका मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस में है वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस. दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड आई हैव टू प्रूव दिस हाउ इट कम्स. सो फिर से देखो, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. ये प्लेन से जो परपेंडिकुलर है आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन में कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन अ प्लेन ऑफ ए लैमिनर बॉडी. ये दोनों एक्सिस भी लैमिनर बॉडी में है कि नहीं, उसी का मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. वी हैव टू प्रूव दिस हाउ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. So this is my y axis, so I will take here y, so this will be also my y. This is my x axis, so this is my x, this is my x, and this distance is my r. Okay, this distance is my r, and you all know that moment of inertia formula is what,
m into r square. Yes or no? This is my moment of inertia formula. So now I will apply moment of inertia one by one in each and every axis. That is moment of inertia. Step 1, what I will do, step 1, moment of inertia about x axis is ix. yes or no? ix which will be equal to integration of, देखो मैंने क्या बताया है कि ये छोटा मास है, बहुत छोटा मास है, मैंने आपको 11th में भी एक्सप्लेन किया है। छोटा मास को हम ऐड करते करते जाएंगे, उसको इंटीग्रेट करते रहेंगे, एक बड़ा मास मिलेगा, टोटल मास मिलेगा। अब ये छोटा मास है, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन किया मतलब मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, डी एम, स्मॉल मास। अब यहाँ पे आर स्क्वायर भी तो लेना है, पर यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है दोस्तों, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आर क्या होगा, वाई, so it is y square dm. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर जब देखूंगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लिया, इसके लिए मैंने इंटीग्रेशन किया, और ये वाई स्क्वायर क्यों आया दोस्तों, परपेंडिकुलर जो होगा ये इस एक्सिस से, इस एक्सिस से कौन परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस कितना है, y, so it will be y square dm because the formula is what, mr square. Here m is small amount of mass dm and distance r square is what, your y. Okay, so this is my step 1, moment of inertia along the x axis. Similarly, moment of inertia along y axis. Step 2, moment of inertia अबाउट वाई एक्सिस। बहुत ट्रिकी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए अच्छे से, और जो भी डाउट आया मुझसे पूछ लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जब देख रहा हो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब फिर से डी एम तो होगा, देखो दोस्तों आई इज वॉट एम आर स्क्वायर, डी एम इंटीग्रेशन दिया मतलब स्मॉल मास आ गया। अब वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में ये चीज़ आएगा ना आपका परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप 3 पेन ले लो, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम वीडियो में नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो y है उससे परपेंडिकुलर क्या है, x, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर डी एम, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ स्टेप 3, step 3, that is moment of inertia about z axis, that is iz, which will be equal to, अब z axis की ओर दोस्तों जाओ, z axis में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये चीज़ परपेंडिकुलर होगा, कौन सा चीज़ परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़, सो इट विल बी आर स्क्वायर डी एम, इक्वेशन नंबर 3। नाउ let us consider this triangle, that is OPC. in triangle OPC, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट भी लिए रहेंगे, कोई बात नहीं, आप आराम से, हमें कंसेप्ट समझना है, हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OPC, ट्रायंगल COP is what, 90 degree, yes or no? So by Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem will be what? If suppose this is my 90, then this is my hypotenuse side, and this is my opposite side, and this is my adjacent side. So it will be adjacent side square plus opposite side square, which will be equal to what? Hypotenuse square. Okay, so now I got the equation as a x square plus y square is equal to r square. How I got? You understood here, with the help of Pythagoras theorem I got. Okay, now अभी हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लेके आना है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो मिला है, वो क्या है, हमारा डिस्टेंस मिल गया है कि नहीं, पर यहाँ पे मास की कमी है और इंटीग्रेशन की कमी है, तब जाके हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब हमें उसे ऐड करना है।
So next step is what? Listen properly. We got as x square plus y square is equal to r square. This is the equation we got. Now what we will do, we'll integrate and multiply by dm on both sides. Integrating and multiplying by dm on both sides. So integrate x square and multiply by dm. Understood? Plus integrate it y square multiply by dm is equal to integrate r square multiply dm. You got this equation. Now what is your equation number 1? That is integration of x square into dm. Sorry, we'll see the equation. Equation number 1 is what? Ix is equal to integration of y square into dm. Equation number 2 is what? Iy is equal to integration of x square into dm. Iz is what? Integration of r square into dm. So we can write this integration of y square into dm as a ix or not? Yes. So from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, this will be what? Iy plus ix is equal to iz. Therefore iz is equal to ix plus iy. This is nothing but theorem on the perpendicular axis is proved. Okay. So now next topic is theorem on the parallel axis. Okay. So first again I will state what is theorem on the parallel axis, then I will explain you. It states that moment of inertia of a body about an axis is equal to sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through a center of mass. ध्यान से सुनो. And the product of its masses and square of its perpendicular distance between two parallel axes. ठीक है. अब हम डायग्राम की ओर जाते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. Let us take a rigid body again. देखो दोस्तों, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, ये हर एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछते हैं, तो 3 स्टार दे दो इसे. अब यहाँ पे जो है ये सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से एक एक्सिस जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा. लेट अस कंसीडर दिस सेंटर एज ए सी. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस सेंटर इज व्हाट? आई सी और नॉट? यस. नाउ read this statement. It states that moment of inertia of a body about an axis. About an axis मतलब एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है उसके कहीं नज़दीक में एक एक्सिस है. about an axis. Let us consider this axis moment of inertia IO, axis as a O, where the moment of inertia is IO. Okay, it states that moment of inertia of body about an axis, that is IO, is equal to sum of its moment of inertia. मतलब sum of its moment of inertia मतलब addition moment of inertia about parallel axis passing through center of masses. मतलब जो ये एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दैट इज IC, प्लस product of its masses and square of its perpendicular distance between two parallel axes. Product of its masses मतलब मैं यहाँ पे कुछ मास कंसिडर किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ मास कंसिडर किया, पॉइंट P ले लो, यहाँ पे dm अमाउंट ऑफ मास कंसिडर किया. प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस दैट इज m एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब ये डिस्टेंस को लेट अस कंसिडर हम लेते h डिस्टेंस, दैट इज h स्क्वायर. सर आपने तो बोला कि इंटीग्रेशन में हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो छोटा अमाउंट ऑफ मास ले रहे हैं ना. हाँ, ये हम इक्वेशन में बड़ा अमाउंट ऑफ मास क्यों लिए? ये हमने डायरेक्टली थियरम ऑन पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन लिख दिया. जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो छोटा अमाउंट ऑफ मास लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये बड़ा अमाउंट ऑफ मास मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा. बट मुझे यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सप्लेन करना था, इसके लिए मैंने बड़ा m ले लिया है. ओके, तो इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस IO is equal to sum of its moment of inertia
about parallel axis passing through the center of masses, correct, that is IC, plus product of its masses, that is mass, this mass, and square of its perpendicular distance between them, मतलब ये जो perpendicular distance है दो एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर, प्रोडक्ट किसके साथ, मास के साथ. Understood? So this is our parallel axis theorem formula. Okay, so we have taken the mass, this is our mass, okay, let us consider this point as a D point, let us consider this distance as a X distance. Okay, so you have to complete the diagram, and this dm is a mass, so you can write this IO is moment of inertia about an axis, moment of inertia about an axis, IC moment of inertia about an center of masses, about ना लिखो passing through center of masses, masses नहीं बोलेंगे सिर्फ mass. Okay, and dm small mass, h is a distance between two parallel axes, and x is a distance from the center of axis to the mass point, is a distance from the center of axis to the mass point. Okay, so it states that moment of inertia passing through about an axis is equal to sum of its moment of inertia passing through center of masses and product of the masses and square of perpendicular distance between two parallel axes. अब ये फॉर्मूला कैसा है वो हम प्रूफ करते हैं. तो आपने डायग्राम समझा, स्टेटमेंट भी समझ गया, अभी आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है. ओके, सो नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल दैट इज OPD. इन ट्रायंगल OPD मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में अलग अल्फ़ाबेट लिया रहेगा कोई भी, तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट से इसको प्रूफ कर सकते हो, बट आपको प्रूफ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, और कुछ नहीं. ओके, सो इन ट्रायंगल OPD दिस इज 90 डिग्री और नॉट, यस दिस इज 90 डिग्री, सो एंगल ODP इज 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem, you know what is Pythagoras theorem, that is OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, yes or no, that is OD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर. अब दोस्तों ये जो OD है वो क्या है, OC प्लस CD, so substitute here, you will get OD is equal to OP square will be equal to OC plus CD the whole square plus PD the whole square, yes or no. So A plus B the whole square formula apply करना है. OP square will be equal to OC का square plus 2 times of OC into CD plus CD का square plus PD का square, yes or no. दिस इक्वेशन हमें मिल गया. नेक्स्ट पेज में देखते हैं हमें क्या मिला इक्वेशन, दैट इज OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD प्लस CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर. अब हम देखते हैं आगे. तो अब हमें जो इक्वेशन मिला था OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD प्लस CD होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. अब जो PD है दोस्तों वो उसको हम PC लिख सकते हैं. देखो किस तरह, मैं यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि हमने पिछले पेज में लिखा था, दैट इज OP स्क्वायर, आप लोग एक ही बार लिखना, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC
प्लस इंटू सी डी, सॉरी इंटू सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम डायग्राम की ओर जाते हैं। डायग्राम में देखो ये जो पी सी स्क्वायर है ना दोस्तों, पी सी स्क्वायर वो क्या होगा, पी सी स्क्वायर विल बी पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, उसको हम पी सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम उसको पी सी स्क्वायर लिख देंगे एज सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट हियर, सो ओ पी दी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी डी प्लस पी सी दी होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना दोस्तों, बहुत बड़ा है थोड़ा, पर ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये जो सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर जो है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम से पी सी स्क्वायर हो जाता है। डायग्राम में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी डी प्लस पी सी स्क्वायर, और जो पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है वो पाइथागोरस थ्योरम बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है, उससे मुझे क्या मिलता है, पी सी स्क्वायर। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया पी सी स्क्वायर। ठीक है, अब डायग्राम में फिर से जाते हैं। उस डायग्राम में ओपी डिस्टेंस क्या है, आर। ओपी डिस्टेंस क्या है, आर। और ओसी डिस्टेंस क्या है, एच। ओसी डिस्टेंस क्या है, एच। और सीडी डिस्टेंस क्या है, एक्स। यस और नो? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है कि नहीं? एज ओपी इज इक्वल टू आर, ओसी इज इक्वल टू एच, सी डी इज इक्वल टू एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर मीन्स वॉट, एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू एक्स। पी सी क्या है, पी सी क्या है, पी सी विल बी वॉट, पी सी, ये भी आर होगा ना, जैसे ये हाइपोटेनियस आर था तो ये भी आर हुआ ना मेरा, तो पी सी भी क्या है मेरा, आर। तो सब्स्टिट्यूट आर स्क्वायर। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, आर ओ स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर, आर ओ नहीं बोलेंगे, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले के फॉर्म में आना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बड़ा मास लूंगा क्या, नहीं, छोटा मास लूंगा। क्यों? छोटा मास को इंटीग्रेट करूंगा, फिर बड़ा मास मुझे मिलेगा एम एच स्क्वायर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। अब मल्टीप्लाइंग both side by dm, so rho square into dm is equal to h square dm plus 2h into x dm plus r square dm. ओके, सो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ rho square dm is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2hx इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये आप ही लोग बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर इंटू डी एम क्या होगा दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी ओ, नो? तो आई ओ, यस और नो, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी एम, मतलब क्या, एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस 2h कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। अंडरस्टूड और नॉट? अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डीटा दोस्तों क्या होता है, टीटा। सो आई ओ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विल बी वॉट, एम। यस और नो? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी डीटा इज वॉट, टीटा। सो आई ओ विल बी एच स्क्वायर इंटू एम, यस और नो? डी एम विल बी एम, नो? प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम, 2h इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। हम इस आर स्क्वायर इंटू डी एम को भूल गए ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम मतलब क्या, जो सेंटर से पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट विल बी आई सी। अंडरस्टूड? सो अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम होता है ना दोस्तों, वो जीरो होता है। क्यों होता है? एज सी इज अ सेंटर ऑफ मास, the algebraic sum of the movement of all particles about the center of mass is always zero for the body in equilibrium. ये जो rigid body है दोस्तों, ये equilibrium में है कि नहीं, इसमें
जो अल्जेब्रिक सम ऑफ द मासेस जो सेंटर ऑफ मासेस से पास होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये डीएम मतलब छोटा अमाउंट ऑफ मास, इसको ऐड करते जाऊंगा तो बड़ा अमाउंट ऑफ मास मिलेगा। मैंने क्या बता दिया, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस और सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, सो दिस इज जीरो। तो इसका रीजन लिख दो, एज सी इज द सेंटर ऑफ मास and algebraic sum of the moment of movement of or movement of all particles, इसका रीज़न लिख दोगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाता है। इसके लिए लिख दो, ऑल पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो फॉर द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस कंडीशन में जीरो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा क्या मेरे पास, आई ओ इज इक्वल टू एम इंटू एच स्क्वायर प्लस जीरो प्लस आई सी, येस और नो। तो मिल गया देखो फॉर्मूला, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, हेंस थियरम ऑन द पैरेलल एक्सिस थियरम इज प्रूव्ड। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। थियरम ऑन पैरेलल एक्सिस थियरम बोलता क्या है, states that moment of inertia of a body about an axis equal to sum of its moment of inertia about parallel axis passing through center of masses and product of its masses and square of the perpendicular distance between two parallel axes। ठीक है, तो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर उसका फॉर्मूला प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, आपको समझ में आ गया। फिर सी डी और पी डी मिल के वापस एक पाइथागोरस का थ्योरम का मिल जाता है हाइपोटेनियस साइड, उसको मैंने पी सी लिख दिया। सारे को टर्म्स मैंने एक्स और जो एच है जो एक्स है जो आर है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये फॉर्म में मुझे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आना है। तो मैं मास डीएम से मल्टीप्लाई किया दोनों बाजू और मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है कि जो है ये आई ओ क्यू हुआ, ये सेंटर से पास हो रहा है रेडियस ना, तो ये आई ओ, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये सॉरी ये अबाउट एन एक्सिस से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये आर, और ये अबाउट एन रेडियस से आर ओ, आई ओ लिया था ना, तो आर ओ, दिस विल बी आई ओ एंड दिस विल बी माई आई सी। अब ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो ये टर्म जीरो हो गया, तो बचा क्या, आई ओ इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस जीरो प्लस आई सी। सो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माई थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। Now next topic which is very interesting friends, that is rolling motion. Very interesting. रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले। हमने जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये सारे चीज़ हमने प्रूफ किए, ठीक है। और भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ये सब चीज़ें प्रूफ किए। तो रोलिंग मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक एक्सप्रेशन प्रूफ कर देंगे, एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जब देखो, रोलिंग मोशन मतलब क्या, बॉडी पूरा रोल कर रहा है, ठीक है, बॉडी रोल करके आ रहा है। अब जब दोस्तों जब बॉडी कोई भी बॉडी रोल करता है ना, उसमें दो टाइप के एनर्जी लगते हैं, एक ट्रांजिशनल एनर्जी लगता है और एक रोटेशनल एनर्जी लगता है। जैसे हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। उस कंडीशन में रोटेशनल में दो टाइप के एनर्जी, दैट इज फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एनर्जी, सेकेंड इज रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी मतलब वो एंगुलर जैसा होगा, ट्रांजिशनल मतलब क्या,
वो लीनियर जैसा होगा। ट्रांजिशनल और रोटेशनल लीनियर और एंगुलर जैसे ही परफॉर्म करते हैं। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जब टोटल एनर्जी दोस्तों ये रोलिंग मोशन में एक्ट होगा ना, तो स्टेप 1 हम जाते हैं। स्टेप 1 हमेशा एग्जाम में स्टेप दे के लिखो तो मार्क्स अच्छा मिलते हैं। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, दैट इज ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। अब ट्रांजिशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ, वेयर मैं लिख भी लेता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाता है बाद में। दैट इज ट्रांजिशनल एनर्जी और ये जो ई आर है वो क्या है दोस्तों, रोटेशनल एनर्जी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ transitional energy is a type of linear energy and rotational energy type of the angular type of the energy. Okay, now इतना याद रखना है बस। E is equal to हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांजिशनल में लीनियर जैसा बताया ना, लीनियर काइनेटिक एनर्जी जैसा बताया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल में क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हाफ कॉमन ले लो, एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर मिला। अब आपको मालूम है कि वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा दोस्तों, v बाई आर। यस और नो? अब ये v बाई आर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो e विल बी व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस v बाई आर दी होल स्क्वायर। यस और नो? सो दिस विल बी व्हाट, e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Yes or no? And in radius of gyration we have studied. In radius of gyration, moment of inertia I is equal to mk square. So k square will be I upon m. Yes or no? So k will be what? Root of I upon m. ठीक है? अब ये इसे भूलो, k is equal to root of I upon m। ये तो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये वाले फॉर्मूला। अब आई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, एम के स्क्वायर। तो क्या मिलेगा दोस्तों इक्वेशन, ई विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यस और नो? तो हमें क्या मिला इक्वेशन, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यही मिला ना, स्मॉल आर ले लो कैपिटल आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर यही मिला। अब मैं एम वी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ बाहर, तो बचा क्या, हाफ, सो आई एम सॉरी, ई विल बी वॉट, व्हेन आई विल टेक एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर से कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। सो क्या स्मॉल आर को हम कैपिटल आर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ई विल बी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैसे है यहाँ, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ट्रांजिशनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करो वी बाय आर, आई को सब्स्टिट्यूट करो एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन से इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस ही होता है, वो छोटा आर और बड़ा आर दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। लिख लेता हूं मैं, एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट स्लिपिंग on
एन इंक्लाइन प्लेन, दैट इज क्या निकालना है हमें, टू फाइंड एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्सप्रेशन फॉर ए रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, दैट इज टू फाइंड एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम, ये मेरा जो बॉडी है यहाँ पे रोल करने वाला है। ठीक है, अब थोड़ी देर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बॉडी है जो रोल करने वाला है, ये बॉडी का सेंटर है, रोल करते बॉडी यहीं पे आएगा। इमेजिन करो, फिजिक्स पूरा इमेजिन करना है दोस्तों। अब यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस जाएगा, है कि नहीं। अब ये बॉडी रोल करते हुए आएगा, स्लिप नहीं करेगा। स्लिपिंग का मतलब डिफरेंट होता है, रोलिंग का मतलब डिफरेंट होता है। रोलिंग मतलब घूम घूम कर आएगा, स्लिपिंग मतलब स्लिप होते हुए आ जाएगा। यहाँ पे बॉडी स्लिप कर रहा है क्या, नहीं। स्लिप होगा तो मतलब क्या, इतने ही जगह पे उसका फ्रिक्शन लगेगा। रोल करेगा मतलब पूरे बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों। ठीक है, सो इतने ही जगह पे कब फ्रिक्शन होगा, जब वो स्लिप करेगा। पूरे बॉडी पे फ्रिक्शन कब होगा, जब वो रोल करेगा। ठीक है, अब ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है बॉडी, इसमें जब वो रोल कर रहा है, ये डिस्टेंस जो रोलिंग का है उसका कितना ले लो, लेट अस कंसीडर से एस डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, दैट इज थीटा। सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए पॉइंट, दिस इज a B point, this is C point, which here it is a 90-degree angle. Okay, so now we have to calculate basically acceleration and the velocity formula when body is rolling, not slipping. Okay, so now when the body is at initial position, जब इनिशियल पोजीशन में दोस्तों हो, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों, जीरो, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में था बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। सो कब जीरो, व्हेन बॉडी इज रेस्ट। ठीक है, नाउ व्हेन द बॉडी इज रोलिंग फ्रॉम A to B, then kinetic energy will be equal to potential energy. ठीक है, ये जो जब बॉडी रोल कर रहा है ना दोस्तों, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, ये कुछ रोल जो कर रहा है कुछ हाइट में रोल कर रहा है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हमने देखा थोड़ी देर पहले, प्रूफ किया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी दैट इज हाफ mv² इंटू 1 + k² बाई r²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको तो मालूम है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² इंटू 1 + k² बाई r² इंटू mgh। इसमें से हमें वेलोसिटी आराम से मिल जाएगा। देखो किस तरह, ये m और ये m कट हो गया, है कि नहीं, तो बचा क्या, v² इंटू 1 + k² बाई r² इज इक्वल टू g इंटू h। तो v² विल बी वॉट, 2gh अपॉन 1 + k² बाय r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + k² बाय r²। ये फॉर्मूला किसका मिला मेरे को, वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी। दोस्तों ये 3 मार्क के लिए पूछेंगे। जब बॉडी रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। जब वो रोल करना स्टार्ट करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी क्या है, हाफ mv² इंटू 1 + k² बाई r²। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या है, mgh। सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, v का वैल्यू मिलेगा रूट ऑफ 2gh इंटू 1 + k² बाई r²। अंडरस्टूड। नाउ दोस्तों, टू फाइंड एक्सीलरेशन, दोस्तों एक्सीलरेशन किस तरह निकालेंगे, जिस तरह हमने वेलोसिटी निकाला उस तरह ही एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉडी रोलिंग कर रहा है। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन आपको मालूम है ना, v = u + ad, 11वीं में बचपन में पढ़ा था हमने। और दूसरा s = ut + हाफ at², और v² = u² + 2as। अब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, v² = u² + 2as।
तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोस्तों जीरो है ना, मालूम है ना, थोड़ी देर पहले बताया इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का जीरो रहेगा। तो उस कंडीशन में वी स्क्वायर विल बी व्हाट, जीरो प्लस 2as, सो वी स्क्वायर विल बी 2as। ठीक है, वी स्क्वायर विल बी व्हाट 2as, तो a विल बी व्हाट वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब v थोड़ी देर पहले मिला, दैट इज रूट ऑफ 2gh इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था ना v का, है कि नहीं। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे, a विल बी व्हाट रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्योंकि वी स्क्वायर है ना ऊपर, अपॉन 2s। नहीं तो आप सिंपली 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर भी कर सकते हो, जो हमें वी स्क्वायर मिला था वो भी कर सकते, कोई बात नहीं। तो a क्या मिलेगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 2s, यस और नो। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो a विल बी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2s। अब दोस्तों ये 2 और ये 2 कट होगा कि नहीं, हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, a इज इक्वल टू gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू s, ये बचा मेरे पास। पर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, ये हॉरिजेंटल सरफेस में जब रोलिंग करेगा उसका एक्सेलरेशन इतना होगा दोस्तों, बट ये इंक्लाइन सरफेस में रोलिंग कर रहा है तो इसमें एंगल टीटा है, तो उस टीटा को हमें लिखना पड़ेगा। हमारा ट्रायंगल किस तरह बना था दोस्तों, इस तरह, देखो किस तरह, इस तरह, यहाँ पे टीटा, यहाँ पे h, ये क्या था मेरा s। ठीक है, तो यहाँ पे साइन टीटा क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट क्या है दोस्तों h, हाइपोटेनियस क्या है s, तो h क्या होगा s साइन टीटा। तो दोस्तों आपको h साइन टीटा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंक्लाइन सरफेस में मिल जाएगा एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन विल बी 2 इंटू एस साइन टीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एस, ये एस और ये एस कट हो गया, तो एक्सीलरेशन विल बी जी साइन टीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एट ऑफ रोलिंग बॉडी एट इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन किसना है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस में, बॉडी इंक्लाइन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब है, इंक्लाइन सरफेस में एक्सेलरेशन कितना है, तो हमें वही तो निकालना था। वेलोसिटी कितना मिला, रूट ऑफ 2gh इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना मिला, g साइन टीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी सॉलिड स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, तो इसका कंडीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। कौन सा कंसेप्ट, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में कैसे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज मीन्स व्हाट, सॉलिड स्फीयर, हॉलो रिंग, हेलिकल रिंग, ये सब कोन में कितना होता है, ये सब चीज़ें में हम देखने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले। फिर उसके बाद हम फिर से रोलिंग मोशन में आएंगे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है, और वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा, एक्सीलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा रोलिंग मोशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। ओके, hope you understood this video. If you have understood, please like and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification of the next lectures. Okay, thank you.